Hello everyone, this is lecture number 18 of hydraulic machines, and in this lecture we are going to study impulse turbine. Basically in our syllabus there is a turbine which is called as Pelton wheel turbine, and it is a type of or example of impulse turbine. In the last lecture, we had studied about the turbine and its type, where we can see that turbines are classified into three categories, and these three categories are in the first category belongs to in the impulse turbine, and the example of that turbine is Pelton wheel turbine. The other two categories are reaction turbine, uh, which is further divided into two categories. First one is pure reaction turbine, and second one is mixed flow turbine. So all we have to study about the three turbines. The three turbines which are as first one is Pelton wheel turbine, second one is Francis turbine, and third one is Kaplan turbine. So in this lecture we are going to study the Pelton wheel turbine, and the remaining two turbines, that is Francis and Kaplan, will be explained later in the next videos. So moving towards the first slide, what is Pelton wheel turbine? So if we go on the definition of this turbine, a Pelton wheel is an impulse type water turbine invented by Lester Alan Pelton in 1870. ठीक है, तो ये आप जैसा कि डिफिनीशन में देख रहे हो, तो ये एक एलान पेल्टन द्वारा बनाया गया था 1870 में, और उन्हीं के नाम पे पड़ा है पेल्टन व्हील टरबाइन। और ये करता क्या है, द पेल्टन व्हील एक्सट्रैक्ट द एनर्जी फ्रॉम द इम्पल्स ऑफ द मूविंग वाटर। मतलब कहने का ये है कि ये टरबाइन क्या करता है कि जो वाटर मूव कर रहा है उसके इम्पल्स से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करता है। इम्पल्स ऐसे समझिए आप लोग कि सडन स्ट्राइकिंग ऑफ वाटर। मतलब कहने का ये है कि जैसे कोई वाटर मूव कर रहा है, तो वो अगर सडनली किसी चीज़ पर स्ट्राइक करेगा तो वो एक इम्पल्सिव फोर्स जनरेट करता है, दैट इज़ dmv/dt। ठीक है, तो जो इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन होता है उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ से इम्पल्सिव फोर्स निकालते हैं। जैसा आप लोगों ने स्टार्टिंग में फ्लूइड मैकेनिक्स में एक एक्सपेरिमेंट किया होगा, दैट इज़ कॉल्ड एज इम्पल्स ऑफ impulse momentum equation or impact of jet, in which we are calculating the force exerted by the jet on a stationary van. And this is the practical example of that impact of jet. So this turbine came from the idea of the traditional overshot water wheel. If you see in the history, you will see this type of turbines were earlier made. These turbines are overshot water wheel. If you see that, this is a wheel on which water will strike, and as a result wheel start rotating. If I will show you from the with a pen, just a minute. Here you can see that water is flowing. This is a wheel, this this wheel, and these are the veins made of wood, and this water strikes over this vein. Suppose from here water is provided at the veins of the wheel. So what will result? It result uh, as a result it start rotating. मतलब कहने का यह है कि जो वाटर आपका यहाँ से गिरेगा, जैसे देखो यहाँ पे ये एक लोकेशन दिया हुआ है जहाँ से वाटर निकलेगा इस पॉइंट से। ठीक, तो यहाँ से वाटर इस व्हील पे पड़ेगा, जिसकी वजह से ये व्हील घूमना शुरू होगी। ठीक है, और इस घूमने की वजह से ये एक तरीके से रोटेशनल एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो ये काम क्या कर रहा है कि ये फ्लोइंग वाटर के इम्पैक्ट से रोटेट कर रहा है, और इसी कॉन्सेप्ट को फर्दर और कैसे मॉडिफाई किया गया, और मॉडिफाई करने के बाद ये देखा गया कि अगर हम इसको सही तरीके से इस पूरे स्टोर्ड वाटर को एक सही तरीके से इम्पल्सिव एक्शन दे करके कहीं स्ट्राइक कराएं, तो वहाँ से हम एक टरबाइन
को ऑपरेट कर सकते हैं, और इसीलिए उसका नाम पड़ गया पेल्टन व्हील टरबाइन। बिकॉज़ ये जो व्हील है, ये वर्ड वहाँ से आया है कि जो ओवर शॉट वाटर व्हील थी, वहाँ वाले कॉन्सेप्ट से हम इस व्हील को लेके आए हैं। और पेल्टन ने क्या किया कि उसको एक मॉडिफाइड वे में उसको ऑपरेट करके दिखा दिया, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया पेल्टन व्हील टरबाइन। ठीक है, ये आप अगर प्रैक्टिकली देखो तो ये ओल्ड मॉडल था और ये न्यू मॉडल जो उन्होंने बनाया था। तो देख लो यहाँ पे उन्होंने एक वाटर जेट लगा दिया, तो मिनट में पेन चेंज कर लो। यहाँ से इन्होंने वाटर जेट लगा दिया जहाँ से पानी अब फोर्स से स्ट्राइक करेगा इस नोज़ल के ज़रिए। और ये एक शाफ्ट है जिसके ऊपर ये एक रनर लगाया गया है बकेट्स के साथ। अभी मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ इन सारी चीज़ों को। तो ये एक कह सकते हो कि प्रैक्टिकली एक ये पेल्टन व्हील टरबाइन है ये आपका। ठीक है, कि अगर आप एक्चुअल किसी फील्ड में कहीं देखोगे किसी हाइड्रो पावर प्लांट में, तो वो आपको ऐसा दिखाई देगा पेल्टन व्हील टरबाइन। ठीक है, ये आपका नोज़ल होता है स्टेशनरी पार्ट, और ये आपका रोटेटिंग पार्ट होता है रनर। ठीक है, इसी को हम पेल्टन व्हील कहते हैं। ये पूरा एक व्हील टाइप में दिख रहा है ना, ये पूरा इसी को हम लोग पेल्टन व्हील कहते हैं। ये शाफ्ट लगा होता है। ये सारी चीज़ें मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ आगे और अच्छे तरीके से। ठीक है, तो अब इस पे आते हैं कि पेल्टन व्हील करता क्या है। ठीक है, तो पेल्टन व्हील क्या करता है कि वाटर स्ट्राइक्स द वेन्स along द टेंजेंट ऑफ द रनर एंड द एनर्जी इज अवेलेबल एट द इनलेट ऑफ टर्बाइन इज ओनली काइनेटिक एनर्जी, देयर फॉर इट इज़ अ टेंजेंशियल फ्लो इम्पल्स टर्बाइन। इसमें होता क्या है कि वाटर टेंजेंट के तरीके से, मतलब एक टेंजेंट बनते हुए स्ट्राइक करता है रनर के ब्लेड्स पे। और इसमें होता क्या है कि जो अवेलेबल एनर्जी है टरबाइन की, वो सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है। मतलब कि हम प्रेशर एनर्जी को एक नोज़ल के हेल्प से काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर लेते हैं, और वो वहाँ पे एक इम्पल्सिव फोर्स प्रोवाइड करता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंशियल फ्लो इम्पल्स टरबाइन, क्योंकि वाटर इसमें टेंजेंशियल फ्लो करता है। ठीक, और पेल्टन व्हील में होता क्या है कि जो वाटर जेट होता है, एक मिनट जस्ट अ मिनट, ये यहाँ पे लिखा है ना, वाटर जेट इम्पैक्ट ऑन द ब्लेड्स ऑफ द टरबाइन मेकिंग द व्हील रोटेट प्रोड्यूसिंग टॉर्क एंड पावर। तो ये क्या करता है बेसिकली कि एक इम्पैक्ट देता है ब्लेड्स के ऊपर, जिसकी वजह से उसके व्हील्स घूमना शुरू होते हैं, जिससे हमें टॉर्क और पावर मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि इम्पल्स हम क्यों कह रहे हैं। तो इम्पल्स का मतलब ये है कि जो आपका इम्पल्स वर्ड यूज़ हो रहा है, ये इसलिए यूज़ हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इम्पल्स में हमने क्या कहा कि जो एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे हम डैम बनाएंगे तो डैम की वजह से आता है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसको हम लोग नोज़ल के हेल्प से काइनेटिक हेड में चेंज कर ले रहे हैं, और ये यहाँ जाके एक तरीके से इम्पल्सिव फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग बेसिकली इम्पल्स टरबाइन कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि जो डैम के पास जो पोटेंशियल हेड है उसको हम एक नोज़ल और स्पीयर के हेड माध्यम से काइनेटिक हेड में चेंज कर लेते हैं। वो मैं अभी दिखाता हूँ आपको स्पेयर वाला अरेंजमेंट। ठीक है, तो ये हो गया इसके बारे में, पेल्टन व्हील टरबाइन के बारे में। इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो यहाँ से आप इतना लिख सकते हो कि पेल्टन टरबाइन होती क्या है और किस एनर्जी पे ऑपरेट करती है। तो ये सिर्फ काइनेटिक एनर्जी पे ऑपरेट करती है, और वो एनर्जी वहाँ पे एक इम्पल्स देती है उसको। ठीक है, ये ऐसा कुछ होता है। देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये एक नोज़ल लगा है, तो देखो ये व्हील है, ये पूरा आपका व्हील है एक, और यहाँ से वाटर निकल के जा रहा है। तो ये टेंजेंट बन रहा है कि नहीं, यहाँ पे ये टेंजेंट बनाते हुए इसको स्ट्राइक कर रहा है। मतलब ये देखो ये ऐसे टेंजेंट बनाते हुए, ये पूरा व्हील है आपका, तो ये टेंजेंट बनाते हुए यहाँ से निकल जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन की वजह से ये पूरा का पूरा व्हील है, इसमें मान लो इस तरीके से बकेट्स लगा दिए गए छोटे छोटे। ठीक है, यहाँ पे आपका एक नोज़ल लगा दिया गया है जहाँ से वाटर इस पे ऐसे स्ट्राइक करके निकल जा रहा है। तो ये देखो टेंजेंट बनाते हुए निकल रहा है इस व्हील से, इसीलिए इसको हम लोग टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन भी कहते हैं। ठीक, अब देखो इस टरबाइन के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। तो इस टरबाइन में बेसिकली आपका कह सकते हो कि ये कुछ कंपोनेंट दिए गए हैं। तो चार मेन पार्ट्स होते हैं इसके, नोज़ल, केसिंग, रनर विथ बकेट और ब्रेकिंग जेट। ठीक है, देखो एक होता है नोज़ल, एक होती है केसिंग, रनर विथ बकेट और ब्रेकिंग जेट। ठीक है, नोज़ल क्या होता है कि ये कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग द वेन्स ऑन द रनर। नोज़ल आपका क्या करेगा कि सिंपल ये
वाटर जो है अमाउंट ऑफ वाटर स्ट्राइक कर रहा है उसको कंट्रोल करता है। केसिंग क्या करता है, इट इज़ यूज टू प्रिवेंट स्प्लैशिंग ऑफ वाटर एंड प्लेज नो पार्ट इन पावर जनरेशन। तो केसिंग क्या करता है इसमें, देखो इम्पल्स टरबाइन में केसिंग का सिर्फ एक ही यूज़ होता है कि वो वाटर के स्प्लैशिंग को रोक सके, मतलब पानी इधर उधर ना फैलने पाए, तो उसको रोकने के लिए केसिंग लगाते हैं। और यहाँ पे केसिंग और कोई काम नहीं करता है, मतलब जैसे आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो, केसिंग में हम एनर्जी कन्वर्जन करते हैं, प्रेशर टू काइनेटिक, काइनेटिक टू प्रेशर, तो वो चीज़ें यहाँ इस केसिंग में नहीं होती हैं। इम्पल्स में जो भी चीज़ें होंगी वो जब तक वाटर उस नोज़ल के पहले अंदर है तब तक, नोज़ल से पानी बाहर निकल गया तो उसका कोई एनर्जी कन्वर्जन आपका नहीं होता है, इसीलिए इसको हम इम्पल्सिव टरबाइन कहते हैं। ठीक है, रिएक्शन में यही बढ़ जाता है, इसलिए उसको रिएक्शन टरबाइन हम कहना शुरू करते हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरा कंपोनेंट इसका होता है रनर विथ बकेट। अब ये मेन कंपोनेंट है। रनर मतलब जो रोटेट करता हो, तो रनर के ऊपर बकेट्स माउंट होते हैं, मतलब एक ऐसे सर्कुलर डिस्क होगी, इस पर छोटे छोटे बकेट्स लगे होते हैं, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये बकेट्स इस पर माउंट होते हैं जिस पे वाटर स्ट्राइक करता है और जिसकी वजह से ये घूमना शुरू होते हैं। ठीक है, अब एक होता है ब्रेकिंग जेट। तो रनर को अगर बहुत जल्दी रोकना होता है हमें, मतलब रनर मान लो कहीं टरबाइन तुरंत बंद करनी है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो रनर को रोकने के लिए हम लोग ब्रेकिंग जेट यूज़ करते हैं। तो ये क्या करता है कि जैसे आपका, देखो ये अगर रनर है, यहाँ बकेट्स लगे हुए हैं इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ से ऐसे स्ट्राइक करके इसको मूव करा रहे हैं, तो अगर हम यहाँ स्ट्राइक करा दें तो ये वापस यहाँ जाना शुरू कर देगा। तो ये आपका कहलाता है ब्रेकिंग जेट, मतलब इसको शॉर्ट डिस्टेंस पे जल्दी से रोकने के लिए हम एक रिवर्स साइड से एक जेट प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, सिंपल समझिए कि अब एक थ्रस्ट देना है इनको। ठीक है, तो ये हो गए चार पार्ट्स। अब इनको मैं दिखाता हूँ कैसे कैसे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक इमेज है। ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा रनर होता है, ये हो गया आपका रनर। ठीक है, यहाँ पे सर ये मिस लिखा नहीं है, ये आपका होता है रनर। ये जो प्लस लिखा हुआ है ऐसे एक रॉड लगी होती है, ये होता है आपका शाफ्ट। ठीक, ये बकेट्स हैं, ये सारे के सारे आपके बकेट्स हैं। ये नोज़ल है, दिख रहा है आपको यहाँ पे, इसमें एक स्पीयर लगा हुआ है जिससे हम उसको फ्लो को रोटेट करते हैं, कितना एनर्जी आपको वहाँ पे चाहिए। ये डिफ्लेक्टर लगा है जो इसको मतलब किस एंगल पर स्ट्राइक कराना है। टेल रेस मतलब जहाँ पानी निकल के नीचे पहुँचता है। ठीक है, और ये केसिंग जो आपका स्प्लैशिंग रोकती है, ये आपका एक तरीके से स्पीयर है जो यहाँ पे मतलब इस नोज़ल को कंट्रोल करता है एक तरीके से। ठीक, इतने सारे कंपोनेंट्स हो गए आपके पूरे ये एक पेल्टन व्हील टरबाइन के। तो मेन आपका बकेट, केसिंग, नोज़ल, ये तीन होते हैं। ठीक है, आगे हम और भी देखते हैं फर्दर इन्हीं को क्लासीफाई करते हुए कि और क्या क्या कंपोनेंट्स इसके आ सकते हैं। देखिए, ये नोज़ल हो गया। नोज़ल में क्या है कि सिंपल आपका नोज़ल में ऐसे ये नोज़ल है। ठीक है, तो यहाँ से पानी मतलब नोज़ल क्या करता है कि प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर देता है। ये कैसे होता है, देखो यहाँ पे नोज़ल में हम क्या करते हैं, ऐसे नोज़ल होती है। ठीक है, यहाँ से तो यहाँ पे क्या है, एरिया घट रहा है, एरिया घट रहा है तो क्यू बाई ए जब रखेंगे तो आपका वेलोसिटी हेड बढ़ जाएगा। जब वेलोसिटी बढ़ेगा तो वी स्क्वायर अपॉन टू जी बढ़ेगा, यानी आपका काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा। अब बर्नौलीज इक्वेशन में अगर एक एनर्जी बढ़ रही होगी तो दूसरी एनर्जी कम हो रही होगी, क्योंकि टोटल एनर्जी कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा कि प्रेशर एनर्जी में से कुछ एनर्जी निकल करके आपका काइनेटिक हेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये नोज़ल क्या करता है, सिंपल आप कह सकते हो कि नोज़ल आपका जो ये आपका नोज़ल ऐसे बना हुआ है। ठीक है, ये आपकी पाइप है, ये नोज़ल है। ठीक है, तो ये नोज़ल क्या कर रहा है सिंपली कि जो डैम के पास पोटेंशियल एनर्जी है उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रहा है, और यही काइनेटिक एनर्जी वहाँ पे हमारा इम्पल्स प्रोवाइड करती है। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो ये देखिए यहाँ पे एक स्पीयर अरेंजमेंट ये दिख रहा है आपको, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, देखो
ये आपका एक स्पीयर अरेंजमेंट है। स्पीयर क्या होगा, ये देखो यहाँ पे एक नीचे टैप लगा है जो आदमी एक हाथ से पकड़ा हुआ है, इसको आप आगे पीछे करोगे तो ये नोज़ल बढ़ता और घटता रहेगा कि इसकी मतलब करें तो इंटेंसिटी कितनी होगी, उस पर डिपेंड करेगा, मतलब कितना पॉइंटेड इसको रखना है आपको। तो यहाँ पे देखो ये ऐसे स्पीयर है, तो ये यहाँ से आगे और पीछे दोनों होता है, मतलब इसको हम आगे भी डिस्प्लेस कर सकते हैं, पीछे भी डिस्प्लेस कर सकते हैं, जिससे हम वाटर के फ्लो को रेगुलेट या कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें कितना स्टीप या कितना स्टीपली स्ट्राइकिंग इसके ऊपर देना है। तो स्पीयर एक तरीके से कंट्रोल वॉल्व समझो इसको, कि जो एक नोजल के थ्रू आउटलेट होने वाले वाटर को कंट्रोल करता है। ठीक, तो ये हो गया आपका स्पेयर। ठीक है, ये अब दूसरा आप करता है बकेट और रनर। देखो ये होता है पूरा का पूरा रनर, और इस पे जो ये माउंटेड होते हैं ऐसे इस तरीके से बकेट्स माउंटेड होते हैं। ठीक है, और बकेट में नीचे हल्का सा कट होता है, ताकि जब अगला बकेट इसके पीछे, मतलब यहाँ एक बकेट ऐसे भी होगा, ठीक है, एक बकेट इसके ऊपर भी होगा, तो ये इसलिए कि जब वाटर स्ट्राइक करता है तो जैसे अगला बकेट यहाँ पहुँचता है तो इसके बीच में रुकावट ना है, मतलब जेट के एनर्जी को ख़राब ना करें। और मतलब ये है कि ये तब इसके सामने आएगा जब ये सीधे वर्टिकल यहाँ पहुँचेगा। ठीक है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ इसको, जैसे देखो आगे मैं दिखाता हूँ अभी। यहाँ पे देखो रनर है और ये बकेट दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो अगर यहाँ पे मान लो हम जेट लगाए हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो यहाँ देखो ऐसे जेट जा रहा है इस तरीके से, तो देखो ये इस पे कब स्ट्राइक करेगा, जब ये बकेट वापस यहाँ पहुँचेगा। मतलब कहने का ये है कि जैसे समझो कि एक ऐसे आपका व्हील है, एक बकेट यहाँ लगा है, एक बकेट यहाँ लगा है, एक बकेट यहाँ लगा, ये आपका नोज़ल हो गया, यहाँ से वाटर इस पर स्ट्राइक कर रहा है। तो अगर ये बकेट यहाँ कहीं बीच में आ जाए तो ये इसका मोमेंटम ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए इसको ऐसे डिज़ाइन करते हैं कि जब ये बकेट यहाँ पहुँचेगा और ये बकेट यहाँ आएगा तब इसको एक कंप्लीट स्ट्राइकिंग ऑफ वाटर मिलती है। तो वो बकेट उस तरीके से डिज़ाइन की जाती हैं, फ्रिक्शनलेस होती हैं, ताकि वाटर का फ्लो कंटिन्यूस उस पर होता हो और पानी उसमें रुकने ना पाए। ठीक है, तो ऐसे कुछ बकेट्स आपको प्रैक्टिकली दिखाई देंगे अगर आप देखोगे तो। ठीक है, इस तरीके से बकेट्स आपको दिखाई देंगी जो फ्रिक्शनलेस होती हैं और इसके ऊपर से पानी फ्लो करता है। ठीक है, अब देखो एक्चुअल साइज़ क्या होगी इसके, देखो यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, इस साइज़ देखो इस टरबाइन का एक्चुअली कि कितनी बड़ी टरबाइंस आपकी होती हैं। ठीक है, ये ऐसे बकेट्स होते हैं जहाँ पे आपका ये रनर पूरा हो गया, इस पर पूरे तरीके देखो पूरे पेरीफेरी पे ये माउंटेड है, और यहाँ से हम नोज़ल से इस पर वाटर स्ट्राइक कराते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ये स्ट्राइक करता है तो रनर घूमता है, रनर घूमेगा तो साफ्ट इसमें लगा है, साफ्ट घूमता है, और इससे हमें मैकेनिकल एनर्जी मिल जाती है हाइड्रोलिक एनर्जी से। ठीक है, ये एक अरेंजमेंट है जहाँ पे हम एक रनर है, ठीक है, ये रनर ये कहलाता है पूरा। ठीक है, ये सारे के सारे बकेट्स लगे हैं जो आपको दिख रहे हैं, एक स्पैचुला दिख रहा है स्पून टाइप का। ये देखो अब यहाँ पे क्या है, ये इसको इधर घुमा रहा है टेंजेंट, ये इधर टेंजेंट, ये इधर टेंजेंट, ये इधर टेंजेंट, ये इधर टेंजेंट। तो देख रहे हो यहाँ पे आपके 5 नंबर ऑफ जेट लगे हैं और पांचों टेंजेंशियली उस पर स्ट्राइक कर रहा है। अगर आप फिर दिखाऊँ तो देखो एक टेंजेंट यहाँ बन रहा है, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ। देख रहे हो सब के सब टेंजेंट बनाते हुए इसको ऑपरेट कर रहे हैं, इसीलिए इसको टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन भी कहा जाता है। अब नंबर ऑफ़ जेट वगैरह, नंबर ऑफ़ बकेट से अब डिज़ाइनिंग के प्रोसेस जो हम निकालते हैं कि डिज़ाइनिंग कैसे की जाती है, हम लोग इसको कैसे डिज़ाइन करते हैं, तो इसमें सब निकालना पड़ता है कि नंबर ऑफ़ बकेट कितने होंगे, नंबर ऑफ़ जेट कितने होंगे, तो वो सारी चीज़ें डिज़ाइनिंग में आती हैं। ठीक है, अब हम लोग थ्योरेटिकल कंपोनेंट देख रहे हैं, थ्योरेटिकली ये हो गया, और इसके बाद आते हैं इसके वर्किंग प्रिंसिपल पर। तो देखो हमने मेन कंपोनेंट में क्या क्या देखा, नोज़ल जिससे हम एनर्जी स्ट्राइक करा रहे हैं, और एनर्जी स्ट्राइक किस पे हो रही है, वो रनर और बकेट पे हो रही है, जिसकी वजह से हमारा शाफ्ट घूमता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर देखो तो ये आपका एक शाफ्ट लगा है। ठीक है, ये आपका पूरा बकेट अरेंजमेंट है, ये नोज़ल है जहाँ से वाटर स्ट्राइक करेगा, ये बकेट घूमेगा, बकेट रनर को घुमाएगा, और रनर के हिसाब से ये साफ्ट घूमेगा फिर। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी आप इसको कह सकते हो कि ये एक आपका पेल्टन व्हील इस तरीके से ऑपरेट होता है। यही वर्किंग यहाँ बताई गई है। तो वर्किंग में देखो क्या कहा गया है कि वाटर जेट स्ट्राइक करेगा बकेट पे, स्प्लिट करेगा दो हिस्सों में,
जैसे बकेट आपका देखो, बकेट आपका ऐसे बना हुआ है डब्लू शेप का, तो बकेट्स को अगर ध्यान दो, ये ऐसे बने हुए हैं, दिख रहा है आपको? ये तो यहाँ वाटर स्ट्राइक करेगा तो ये दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, इधर और इधर। जैसे देखो यहाँ पानी आएगा तो ये दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। अगर मैं दिखाऊँ, स्टार्टिंग में इमेज होगा इसका, देखो यहाँ पे ये एक जेट है, ये दो हिस्सों में यहाँ पे बढ़ जा रहा है, ठीक। तो यहाँ पे स्प्लिटिंग होती है इस बकेट पे, ठीक है। तो इस स्टेप में ये कह रहा है कि वर्किंग में कि इस तरीके से इसमें आपकी स्प्लिटिंग होती है। दूसरे में अब यहाँ पे कह सकते हो कि यह पूरा आपको बता देता हूँ कि जैसे वाटर स्ट्राइक करेगा, यहाँ पे देखो मैं इमेज से बताता हूँ इसको। यहाँ से यहाँ पे हम प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक में चेंज कर लेते हैं इस नोजल से। यहाँ का प्रेशर एनर्जी यहाँ तक काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाता है। ये बकेट पे एज अ इम्पल्सिव फोर्स अप्लाई होता है, जिसकी वजह से ये बकेट रोटेट करना शुरू करते हैं। फिर ये शाफ्ट घूमता है, तो यहाँ तक आपकी हाइड्रो एनर्जी होती है, ठीक है। यहाँ हमको मैकेनिकल एनर्जी मिल जाती है, ठीक। तो इसको अगर नोट करना हो, स्क्रीनशॉट लेके आप यहाँ से नोट कर लीजिए, ठीक है। और ये आपका पूरा एक वर्किंग है। तो जैसे ही वाटर आपका एक हाई प्रेशर से इंटर करता है, तो हाई प्रेशर को हम नॉजल से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं, और फिर वहाँ पे वो उस व्हील के ऊपर हम उसको स्ट्राइक कराते हैं, जिससे उसके ब्लेड्स घूमते हैं, और फिर वहाँ से रोटेशन शुरू हो जाता है शाफ्ट का, ठीक है। अगर हॉरिजेंटल शाफ्ट रखा गया है तो हॉरिजेंटल शाफ्ट में दो से ज़्यादा जेट्स नहीं लगाए जाते हैं, लेकिन अगर शाफ्ट वर्टिकल है तो वर्टिकल शाफ्ट में हम 6 जेट्स लगा सकते हैं, ठीक है। ये एक पॉइंट याद रखिए ऑब्जेक्टिव्स के लिए कि अगर हॉरिजेंटल शाफ्ट है, मतलब ऐसे शाफ्ट हॉरिजेंटल रखा है, इसके ऊपर आपका रनर माउंट है, तो यहाँ पे हम 1 और 2 जेट लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये शाफ्ट ऐसे रखा है और ये ऐसे है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 जेट्स हम यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और इसमें एक लास्ट में हम केसिंग लगाते हैं, एक स्टील की, फाइबर की, कोई भी, जिससे वाटर की स्प्लैशिंग ना होने पाए, ठीक है। तो ये आपका पूरा वर्किंग था आपका पेल्टन व्हील टरबाइन का। अगर इसमें कोई इशू आपको होगा तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसको दोबारा और अच्छी तरीके से आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो ये पूरी वर्किंग थी आपकी, ये कंपोनेंट्स वगैरह थे, ठीक है। मेन पार्ट्स थे नोज़ल, केसिंग, रनर, ब्रेकिंग जेट, ठीक है। ये पेल्टन व्हील की डेफिनीशन हो गई आपकी। सो ये आपकी ओवरऑल टरबाइन। अब केसिंग क्या होगा कि इसी में जो ये दिख रहा है यहाँ पे पॉइंट्स आपको, तो ऐसे मान लो इसके ऊपर हमने एक ऐसे डब्बा लगा दिया पूरा एक फाइबर का, ठीक है। ये पूरा ऐसे डब्बा एक हमने इस पर पैक कर दिया। तो अब इससे पानी जब स्ट्राइक होगा तो ये पानी बाहर नहीं जाएगा कहीं, ठीक है। तो यहाँ केसिंग का मतलब होता है सिर्फ वाटर के स्प्लैशिंग रोकना, ना कि प्रेशर या एनर्जी को चेंज करना, ठीक है। So, thank you very much for watching. See you in the next lecture of this hydraulic machines. So once again, thank you very much.